I have, without knowing production of coder, is filling that gap. Guilt क्या है? Guilt is just lingering on one thought. सोशल मीडिया देखेंगे, पॉपुलर होंगे, इंजीनियरिंग आपको फ्लेक्सिबल बना देती है बाय डिफॉल्ट. The only way to live life is to move forward. 72 hours without sleep, not recommended. Nothing in life is as important as your health. लेकिन सक्सेस को भी दिमाग में ना चढ़े तो उसके लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है. So let's start the product show. Good morning everyone. So here we have Mr. Mohit Teghani, an alumni of GIT of 2014 batch. आप सब ना जब भी एडमिशन सेल में जाते होंगे तो आप पैसेज में जो एलुमनाइज की फोटोज में फोटो देखते होंगे मोहित तेघानी की. तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो हमारे जीआईटी का अनमोल रत्न है. ये सच में है. जीआईटी डज हैव दीज एलुमनाइज इन आवर कॉलेज. So let's start the product show. Boss, we have few introductory questions. So, how are you feeling today? You want the right answer? Yeah, obviously right. Very nervous. Very nervous. That's true. So, how was your journey from United States to Jaipur? Wow. 8-5-7-4. 3 meals and landed in Delhi. But is it the lesson you're looking for? Anything else? Like more environment conditions and all. Definitely जो यूएस का एनवायरनमेंट है वो अब कंपेयर करना इज नॉट राइट. बट हाँ ठीक है, गुड फूड, गुड कंपनी. the best thing I like about US is the company or the good people. So I always feel you become the average of 5 people you spend your time with. That 5 people you find they are really good in terms of where they are in life, not in just in career, but as a human being they are really good. So I'm blessed to live with people, good people there. Sure. And are you facing some time zone difference issues after coming to India? For sure. Like jet lag is a real thing. Seriously. But one thing is like landed at 9. Oh, I landed at 4 in the evening and then somehow I survived evening swing. But after weather it just got covered. Okay, so first segment we have the spotlight. So let's begin the show. My first question to you is, what was your journey from GIT to Angelzo? Wow. Seriously, this is the best part of engineering college. जब उन्होंने बोला हाउ वाज जोश, अगर रिस्पांस आ जाता तो मैं भी उठ के चला जाता. यही फन है. Feel free to make fun, feel free to enjoy it. ऐसा जरूरी नहीं है कि seriously लेना है. बाकी journey from GIT to Angelzo is a big journey. Even like coming to GIT was my destiny. So first counseling में मुझे आने लगा. And then 1 week struggle था और then I got GIT. Now journey in GIT was really awesome to me, to be very frank. अभी आप मुझे अभी देख रहे हैं, probably I'm like almost 10-12 years elder than you, but अभी शायद मैं बहुतों से ज़्यादा young लग रहा हूँ. तो imagine me 10 years back. Imagine एक छोटा सा बच्चा and that I was very fat that time. Gold medal. By the way, मेरे एक प्रोफेसर ने गोलू नाम दिया था which continued for 4 years. It took me a lot of effort to reduce that weight कि गोलू वाला पार्ट हट जाए. तो I came to GIT and luckily I sat close to शुभम की कहीं और जगह नहीं थी. Our first period में हम enter हुए and then somebody said bunk है bunk. And then everybody like just left the class. And I was so innocent कि मुझे लगा कि कोई जानवर आ गया है क्लास में. इसका नाम bunk है. Serious. तो मैंने कहा जो कर रहे हैं लोग करते हैं.
तो लोग बंक बोल के भाग गए और मेरे को लगा कोई जानवर आ गया कि चलते हैं, बट आई वाज वेरी क्लोज टू लेक्चर हॉल की, मैं देखता हूँ कि कब जब बंक जाएगा तो हम वापस क्लास में आएंगे अटेंड करेंगे। अब एक लेक्चर के बाद सब आ गए वापस क्लास में, तो मैंने पूछा ये बंक क्या है, तो सबने बहुत अजीब नजरों से देखा कि ये क्या है ये, बट दिस वाज द रियलिटी। आई वाज so naive to be what use of that, and then GIT is the place who grew me, and people like Shubham, I have really good friends, so they grew me. So starting from bunk, not knowing what bunk is, to passing out, and then I think professors were really good. उन्होंने बहुत help करी. I still remember Ramani sir was actually that time, and I have deep respect for him. Faculties, and then but you learn more from the people around you, तो आपके दोस्त कैसे हैं और क्या इवेंट्स हो रहे हैं। मैं भी one of the photographer रहा कुछ इवेंट्स में, and I can see his future too. No, not as a photographer, but it's fine if you become a photographer. That's the beauty of engineering. So you must do engineering and decide what to do in life. So I was in computer science, but right now in the I'm field application engineer. It's a electronics and communication field. So you never know which field you'll end up in if your destiny, like if your path is not clear. But good thing is like because you in engineering you get experience to all these subjects other than computer science. So it was easy to do the transition. And I got placed in Tech Mahindra from campus. And that too is a journey in itself. So me and Shubham, we were doing an internship in Wales for technology. That also is an alumni, like not myself, Dilnawaz Khan. So most of our time used to be spent there. So मैं वहाँ बैठा था one evening, and he said वो आज तुम्हारे GIT में Tech Mahindra आई है। हमने कहा it's okay, I will be just joining your company after I graduate. कहता है जाके देखिए वो experience है। So I came, there were like 5 rounds. First round में तो it was aptitude and all that. So of course I was not interested seriously, but destiny is its own role. So it was 1 hour 20 minutes exam. I just gave it in 20 minutes and left for again. वो पास में थी company, and I was selected. Whereas the next round was, there was like you had to write 200 pages, like 200 words on a particular subject. मुझे तो टॉपिक भी समझ नहीं आया, तो डोंट फील बैड अगर आपको अभी टॉपिक्स या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। 200 की जगह मैंने 100 लिखा इन क्लीन हैंडराइटिंग एंड आई लेफ्ट। ऑफ कोर्स दे विल नॉट सेलेक्ट, बट दे डिड। So it kept happening, and I ended up in Tech Mahindra. With Tech Mahindra, through Tech Mahindra, I served Intel Bangalore, then Intel Japan. There I worked for Apple, and then I moved to US. After there also I served Tech Mahindra. Then after 2 years I moved to Andrew, and there I worked as a pre-sales post-sales. So yeah, a lot of Hello. So my question to you is, how much gap do you feel between the college campus and corporate world? now, particularly if I talk about right now, the introduction of Coda is filling that gap. How should I say that? I still feel the curriculum is not up to date. So, side में कुछ करना is really important. And staying updated with both the current technology, the current market trends is really important. But again, that also includes कि अब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा distractions हैं, which also is creating problem. हमारे टाइम में इतना नहीं थे। कोई लगता था Java सीख लो, C# सीख लो, C सीख लो, C++ सीख लो। And आज के टाइम पे every other influencer, everything on the social media is showing students a different picture, which doing good is doing more harm. Rather than good, it's doing more harm. So start with something and then go a little deeper to a point that you realize whether I want to do this or not. That's my understanding. So जरूर definitely gap है, but then whatever you plan to learn,
learn it to at least a level where you realize, is it for me or not? So my take would be, of course there is gap, but to fill that gap, associate with the people who can guide you. I still don't prefer social media for that matter. And then whatever you decide, if you're not sure if this is for you or not, go to a level where you can decide if it's good for you. And then switch. Repeat the process, you have enough time. Don't compare क्यों नहीं third year में आ गई. Sometimes people feel कि it's fourth year है, after having a job, but it's completely fine. आप किसी रेस में नहीं हैं, आपके हिसाब से. So that release a lot of pressure on your shoulder. क्योंकि it's going like a rat race. तो आपको रेस में जाने की जरूरत नहीं है. Be stress free, then you'll end up somewhere good. Good morning. My question is that what things in the present era you would prefer to our students? No, I was strictly told not to say this as an answer. I'm not the right person to answer this, but of course, your faculties, your like mentors that you have here, they will be like the right person to guide you. But what I see, data science is picking up, AI ML is picking up in all the areas. Definitely, some of the jobs will be affected by AI, but people who know how to use it and people who are creating that will stay there. So AI ML is of course a hot topic. But then I still feel like just jumping from hot topic to hot topic, it will not solve any purpose. Whatever you do it to a very deeper level. Because right now, as I said, like there's a lot of distraction. The skill that is more valued here right now is focus. If you're focused, if you're dedicated, if you are pursuing mastery in a particular subject, that will be appreciated more, paid more, even if it's an outdated Q basic kind of thing. So whatever you do it to a very, 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 very deep level before you plan to switch to the next gig. We call it gig because it keeps changing. So AI, ML, data science, even Python, or even I'll say HTML, CSS for that matter. Anything that you do will pay you off irrespective what market is going towards if you go at a very deep level. Thank you. And next is, what do you feel about the qualities like generosity, humility, respecting others? How much they are helpful in IT industry? I think that's what makes a person human. So if you are good at in particular technology, you will be replaced by AI. You will be called a robot. But to call a human, this is the basic need. I mean, it doesn't even like make a question like that's But still, to develop these qualities in the young generation, how would you suggest them that these things are really important to be a good manager or to be a good colleague in that way? Sure, you are absolutely right. ये तो if I see my life, I think these are the skills or these are the attributes that inspire me. So sometimes like I feel like even you may be the hardest person in your team, in your surrounding, but things like these pay you more than what you know. So have these, and I think everybody has this at some level. It's just how the society treats you and how the society has programmed you. वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी. बाकी सब में है, सब हनुमान है, सबको अपनी पावर्स भूल गए हैं. तो कोई ना कोई आपको फैकल्टी चाहिए, कोई ना कोई मेंटर चाहिए अपनी लाइफ में जो आपको रियलाइज करा सके. कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपके अंदर वो ऑलरेडी है. जस्ट एक्सेप्ट इट, तो आपका प्रोसेस आधा कम हो जाएगा. इफ यू एक्सेप्ट इट, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि नई स्किल है तो ये आपको एक्वायर करनी है. आपके अंदर ऑलरेडी है. यू जस्ट हैव टू पॉलिश इट एंड अप्रिशिएट all these characteristics. This is really important. मेरे को तो Java, C++, Python से ज़्यादा I think this has paid off. So my question to you is, हमने सुना बहुत स्टूडियस थी अपनी कॉलेज लाइफ में, तो उसके अलावा आपका कोई इंटरेस्ट हो? यार स्टूडियस तो पता नहीं, मतलब I feel girls are more studious क्योंकि कहते थे यार तू बॉयज टॉपर है. मैंने कहा कि बॉयज टॉपर और गर्ल्स टॉपर के बीच में 15 लोग हैं. तो that doesn't even count. अभी लाइक डिस्कशन यही चल रहा था जस्ट बिफोर जॉइनिंग दिस कि
ये हैबिट थी स्टूडियस, आई विल कंसीडर दैट स्टूडियस कि किसी भी सब्जेक्ट में डीपर मीनिंग रखना, बट दैट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट में टाइम लिमिटेशन ऑफ सेमेस्टर मेरा आधे से ज़्यादा कोर्स छूट जाता था, आधे से ज़्यादा असाइनमेंट छूट जाते थे, और कई बार मैंने शीट्स भी नहीं सबमिट करी, फाइल्स नहीं सबमिट नहीं करी बिकॉज आई थॉट इट्स नॉट परफेक्ट इनफ टू बी सबमिटेड. तो studious time, I'm not sure if that counts as studious. Sorry, I missed the question. What else? इंटरेस्ट आपका क्या था? Point painting is one of my interests. I love to read books. But- Again, it's studious. I'll not say it's connected to your earlier question. जहाँ पे आपने कहा humility and then some generosity, some amount of spirituality. I mean these books make you stay. तो मैं वो वाली बुक्स पढ़ता हूँ ज़्यादातर, which is self help, philosophy, psychology, not crime thriller. So reading books, I play sports. Luckily I play in US too. And you guys have seen like USA team recently taking part in. So the person is Saurav Netravalkar. So we practice in the same nets. But वो leather से करता है tennis से. So if you keep pursuing, again, it comes to the same topic. You do whatever you like to a very deeper level, it will pay off somewhere. So cricket is one of the hobbies, like reading books. But all these hobby is like common to everyone. Okay, like listening music, I don't think it's a hobby. It's just pastime. Yeah, hiking is one thing. Sports. Not a very happening person. How do you feel about the role of mentor in our life? Mentor? Yeah. To me, mentor is everything. Now I keep hearing stories like I'm going back to my school and meeting my teachers and all that. So students are reminding me, key teachers used to say you'll do good in life. It's because I feel the only difference was I was too much connected with them. तो मेंटर आपकी लाइफ में इज रियली इम्पोर्टेंट. इफ यू डोंट हैव वन, गो फाइंड वन. बी इन दैट परस्यूट ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट मेंटर एंड डोंट स्टॉप, keep exploring. Mentorship is the utmost thing. इवन अपने अगर आप शास्त्र या पुरानी चीजें उठा के देखें तो गुरु शिष्य कल्चर इज ऑल इनग्रेन्ड इन अ होल सोसाइटी. तो गुरु नहीं है आपकी लाइफ में और मेंटर नहीं है तो आपकी लाइफ को सही गाइडेंस नहीं मिल सकती. इट्स माय अंडरस्टैंडिंग. आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज हाउ माय लाइफ हैज शेप्ड. अभी आज के टाइम पे इट्स परफेक्टली नई आपके ट्रेन्स आ रही हैं गोइंग एट वेरी हाई स्पीड. आप कोचेस भी देखेंगे ट्रेन में तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल कोच टू अ लग्जरी फर्स्ट एसी कोच. What takes them to the same destination is the engine, however old that may be. तो हमें लगता है कि हमारे faculties, हमारे teachers, they are outdated, they don't know anything. But then the respect that you give them and the mentorship that they will give you, that will be for life. That cannot be outdated. तो जो हमें आज के टाइम पे ट्रेंड होता है कि अरे फैकल्टी के लिए हमें रिस्पेक्ट नहीं है, इट्स ओके इफ यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट एट लीस्ट. एंड देन कीप be in the pursuit of finding the right mentor. It will be a like मेरी लाइफ में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, there have been so many instances where मेरे को डिसीजन लेना बहुत टफ था, and I'm not that kind of a person who can take a decision ऐसे quick. Even if I go to a restaurant, I'll ask somebody else to order. But I had a mentor in my life throughout my childhood. That was my grandfather. It can be any person, maybe tech or not. Sometimes he has given me answer which my mind accept as it is, that has done wonders to my life. मेरे दिमाग में भी कई बार ऐसा आया कि यार तो सीरीज से भी नहीं है, but then I mean mentor has that kind of power. Take it to a spiritual level or even a worldly level. Mentorship, that is something that drives my life. I cannot survive without a mentor. That's that important. So someone gave us the idea to convert this product into a podcast. So we want to listen your views on that. ये देखो आइडिया देना तो बहुत इजी है.
it's the credit goes to you guys कि वो आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वो बैठ कर आगे साथ दे रहे हैं, it's just one of the things that comes out from the mind or mouth, और आपने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, that's commendable. I will not take credit for that. तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये था कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा आपको लगा कि मतलब ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, आपको बहुत रिग्रेट हुआ कि मतलब बहुत गलत डिसीजन लिए, तो फिर आपने ऐसे कौन से स्टेप लिए उसको मूव ऑन करने पे या फिर नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करने पे? Yeah, particularly in my life, guilt word नहीं है like seriously. तो you said कि studious रहे हैं, तो studious I have enjoyed studying. I will not say I have never aimed for marks or sir. तो 11th 12th में अगर IIT के लिए प्रिपेयर किया, नहीं हुआ, of course नहीं होना था, मुझे पता था, लेकिन अपने से सच बोलना is a skill that I learned that day कि कुछ करो ना करो, आपको आपसे सच होना जरूरी है, सच्चा होना जरूरी है। सोसाइटी के लिए आप कुछ भी इमेज बना सकते हो, बट अपने अंदर अपना कॉन्शियसनेस आपको कभी भी गलत इमेज बनाने नहीं देगा। बट दैट व्हेन मेरे को बहुत रोया, एक ही दिन रोया, बट देन somehow, अच्छा I mean I should not say this thing कि गलत मैसेज आता है, but then IIT के एग्जाम नहीं हुआ क्लियर, AIT क्लियर नहीं हुआ, तो RPT के थ्रू एडमिशन होता था RT में, तो उसका सेंटर जस्ट मेरे घर के पीछे था। घर वालों ने चला था, मेरा मन बना हुआ था कि आई विल ड्रॉप आउट, मतलब आई विल टेक अ ड्रॉप ईयर, तो वहाँ चला गया। I used to love maths, मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, मैंने पूरा 3 घंटे से मैथ्स सॉल्व करी, 35 क्वेश्चन समथिंग होते थे, 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड आई वाज श्योर कि सही है, बट आखिर के 5 मिनट मैंने ABC करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना, बट देन उससे ब्रेक आ गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये करना चाहिए, बट देन अगेन मेंटर केम इनटू पिक्चर, उन्होंने मुझे कहा कि इट्स ओके, यू आर गेटिंग गुड कॉलेज, जस्ट टेक इट, फिर आप मास्टर्स के लिए यू कैन एम फॉर अच्छे और IITs one part है क्या? See this is like connecting to the previous question. यहाँ पे mentor कि आपको बहुत हेल्प चाहिए, otherwise it's very easy कि आप एक thought को लेकर, guilt क्या है? Guilt is just lingering on one thought कि एक thought लिया और आप उसके पीछे पड़ गए, वही फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, वही मेंटल हेल्थ इश्यूज और ये सब जो अभी बहुत कॉमन है, फिर आप सोशल मीडिया देखेंगे और डिप्रेस होंगे। तो गिल्ट एक्चुअली कुछ है नहीं, पास्ट इज जस्ट टू लर्न लेसन, फ्यूचर का मत सोचो, वो प्रेजेंट, हमें नाम प्रेजेंट ही है, देखो प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं गिफ्ट, तो इस गिफ्ट को आप छोड़ के और पुरानी चीजों में फंसे हुए हैं। एंड आई विल नॉट से इट्स वेरी इजी, बहुत हार्ड है, खासकर अगर ब्रेकअप वाला पार्ट से मूव ऑन है तो, बट हो जाता है, टाइम हील्स एवरीथिंग, जितना जल्दी करो उतना होगा। कभी किसी से प्यार किया ट्राई भी आ रहा है, सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट इज कि बॉस, हमने ना एक राइटिंग स्किल के बारे में सुना है, जिसमें अगर आप फाइल्स लिखते वक्त अगर पेज में ना हैंड की रख कर लिखते हो तो पेज पे सिलवर पे नहीं आती है, तो ये आइडिया आपको कैसा लगता है? ओह माय, ये आइडिया तो नहीं, मजबूरी थी, मेरे को स्वेट बहुत आता है। तो आप लिखो कुछ, नीचे का पेज पूरा गीला हो जाता था, तो आप लिखो ए और ए, तो वो जो ओ वाला चीज चालू हुई ना, वैसे ही हुई। मैं ए ऑसम में AW लिखा और वो फैल गया ओ, तो इसलिए थैंक यू रखना पड़ता था कि वो नीचे वाला पार्ट खराब है। आप इसे सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल करो, एटलीस्ट इसकी वजह से हैंकी रखेंगे, आज तो हो गया था, हो गया तो फिर तो फाइल्स ही कंप्लीट नहीं होती। Okay, so moving on to the next question. How do you think Donald Trump's presidency will impact NRIs in the US and people in India? ये तो बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं, बट मुझे ये पता है मोदी जी दोस्त करके है।
आउटगोइंग मोदी के नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं हम को इस बार, तो मुझे सच में पॉलिटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कुछ फेवर में नहीं गया तो इंडिया है हमारे पास, आप लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ सेट हो जाएंगे। नो इंटरेस्ट इन दैट। Hello. So my next question is that any moment of your college life that you cherished a lot, or ऐसी कोई मेमोरी जिसमें आपको वापस आप रिलीव करना चाहते हो? हाँ, और अच्छा ये भी है बहुत इम्पोर्टेंट चीज आई फील है, इट्स अगेन कनेक्टेड टू गिल्ट। अगर आप पुरानी मेमोरीज को रिलीव करना चाहोगे तो आप पुरानी पूरी मेमोरीज को रिलीव करते रहोगे अपने माइंड में। द ओनली वे टू लिव लाइफ इज टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स इट। तो अभी किसी न किसी फॉर्म में भगवान चला देता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अकॉर्डिंग टू यू हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए या डोमेन ओरिएंटेड होना चाहिए? फ्लेक्सिबल है डोमेन ओरिएंटेड। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग आपको फ्लेक्सिबल बना देती है बाय डिफॉल्ट। डोमेन स्पेसिफिक होना इज रियली इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी अप्रिशिएट करनी चाहिए। आई विल गिव यू एग्जांपल कि डोमेन में रहना इज लाइक बीइंग रिजिड, राइट, लाइक बीइंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आप कोई भी बड़ा पेड़ देखिए ना, तो एट अ वेरी ग्राउंड लेवल बहुत उसकी रूट्स बहुत फैली होती है, इट्स वेरी ग्राउंडेड, बहुत ग्राउंडेड रहता है। बट अगर वो फ्लेक्सिबल ऑन टॉप नहीं होगा ना तो ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि हवा आएगी। तो लाइफ में बहुत सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे आपके कि आपको लगेगा मैं इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं अपना ये डोमेन कैसे छोड़ूं, बट वहाँ आपको ये लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करेगी कि जो भी विंड आई है उसमें आप थोड़ा सा शेक हो गए, देन यू विल कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अभी देखो ना, आप कोई आप फील्ड में पाइथन एज फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज थी, वो डेटा साइंस से कनेक्ट हो गई, फिर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी इंजीनियर्स ने, एआई में मूव हो गए, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए सी प्लस प्लस हैं, जो भी कोडिंग बेसिक्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ये डोमेन में आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप वेयर यू लैंड ऑफ वर्किंग, किस फील्ड में आप काम करेंगे, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। So as you told about AI, तो आप अपनी लाइफ में कितना फ्रीक्वेंटली AI यूज करते हो, फिर स्टूडेंट्स को कितना यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? AI तो इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग। अब मेरे मेल्स भी AI लिखता है, मेरे नोट्स की समरी भी वही करता है, और कमाल की बात है कि अब एक मैनेजर भी वही यूज कर रहा है, तो पकड़े जाते हैं। अच्छा, ChatGPT, बट इट्स रियली गुड, वो बहुत अच्छा वो है एल्गोरिथम। तो आपके लिए वो फॉर टाइम नहीं, दैट कैन बी गुड मेंटर कि आपको एक्सेप्ट द इमोशनल पार्ट, तो आप उसे बिल्कुल यूज करिए। ChatGPT सबसे कॉमन वन है, बट अभी बहुत सारे नोटबुक है, कई बार फैसिलिटी का कुछ आता है जिससे नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तो देयर आर मेनी चैट लाइक Copilot, बट लर्निंग प्रोसेस पे हिंडर होता है, सॉरी लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे, तो वो तो हिंडर होगा ना कि नहीं, बिल्कुल आप जैसे जो गाइडेंस आप मेंटर से लेना चाहते हैं आप वो उससे लीजिए, आप उसको कोड रिव्यू के लिए लीजिए, उसको बोलिए कि यार मैं पाइथन सीखना चाहता हूँ, मेरा लेवल ये है, गिव मी लाइक अ रोड मैप। फिर उसके बाद वो कुछ देगा, आप कुछ कोड लिखोगे, उससे पूछोगे कैन करेक्ट दिस कोड एंड कैन मेक इट बेटर, या कैन यू एक्सप्लेन ईच लाइन टू मी। तो वो एक फ्री में आपको एजुकेशन का प्लेटफॉर्म दे दिया, स्टूडेंट्स को भी यूज करना ही चाहिए। अगेन इफ यू डोंट यूज इट, you don't know how to interact with AI, तो आपकी जॉब जब तक आप ग्रेजुएट होंगे it will be more। अभी recently एलोन मस्क ने ड्राइवरलेस कार इंट्रोड्यूस करी, टेस्ला। उसके अलावा रोबोट्स एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो आपके नेक्स्ट 3 years में तो हो सकता है वो आपके मार्स पे हो। तो टू लिव अप टू दैट लेवल आपको ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट करनी चाहिए, और जैसे भी यूज करेंगे आपको इसके यूज की समझ में आएगा। But of course not no coding.
कि आप कोड करने के लिए आप ChatGPT को कह रहे हैं कि भाई आप कोड करके दे दो. That's smart. True. So my next is कि हम ना कॉलेज में एक टर्म यूज करते हैं बॉस फॉर आवर सीनियर्स. What do you feel? Should it be in culture or No. why? We all are equal. ये एटलीस्ट ये चीज मैंने सीख के लिया था. मेरे को अगर फेमिनिस्ट होने वाले से पहले तो ये इक्वालिटी लानी चाहिए कि वी ऑल आर इक्वल. क्योंकि हम आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ. आप बॉस बोल के मुझे इस पोजीशन पे बिठा रहे हैं, देन आई कैन आल्सो मिसयूज माय पोजीशन. तो बेटर है कि हम गिव एंड टेक रिलेशन रखें. कुछ मैं आपसे सीखूं, कुछ आप मेरे से सीखें. बॉस के साथ एक सीनियरिटी ऐड हो जाती है. यू स्टार्ट फीलिंग सिक्योर. इट विल ओनली ऐड टू योर ईगो. उसमें और कोई एडवांटेज नहीं है. मेरे को बहुत टाइम लगा. हम ऑफिस में भी जाके अपने मैनेजर को सर मैम बोलते थे. ये कल्चर हमारा ब्रिटिश टाइम से आया है कि वो को सर और मैम बुलाना अच्छा लगता है. बट देन यूएस गए तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट कि हम अपने सीईओ को भी बाय फर्स्ट नेम बुलाते हैं. दैट शोज कि आपकी इक्वालिटी है. एंड देन अभी आप और बोलोगे तो आप इसके सॉरी किया मेरे को कोई भी फीडबैक देने के लिए. बट अभी आप बॉस बोल रहे हैं वी आर फ्रेंड्स. आप बोलोगे कि यार आपने आज शुरू से नहीं करते, पर ये पेस ऑफ काम करता है. देन अगर मुझे लगेगा कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है मैं चेंज करूंगा. बट देन जहां बॉस साइड हुआ ना एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा. हैविंग सेड दैट आप भले नाम से बुलाएं बट वो एक थिन लाइन आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए. अपने फैकल्टीज अपने इंटरेस्ट के लिए वो एक रिस्पेक्ट आपको अपने मेंटर होने में हेल्प करेगी. योर कलीग कैन नॉट बी अ मेंटर. तो वो एक डिस्टिंग्विश अगर आपके माइंड में है देन परफेक्ट बॉस आई डोंट फॉलो. But it also makes the seniors responsible towards juniors. वो तो वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है सच में. वो तो एक ऐसी ट्रेडिशन है. हम अपने सीनियर्स को देख के मोटिवेट हुए और हमने गाइड किया. और ये हमारे है ना इस पे बैक है कि हम वापस कैसे पे बैक कर सकते हैं. और अगर अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब में ऑलरेडी वो कैपेबिलिटी है. हम सच में कुछ नहीं दे सकते. ना हम मोटिवेट कर सकते हैं ना कुछ आपको सिखा सकते हैं. आप ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हैं. आप ऑलरेडी इतने केपेबल हैं कि सब सीख सकते हैं. आपको किसी सीनियर की जरूरत नहीं है. टू माय नॉलेज मेरे एक्सपीरियंस था किसी सीनियर की रिस्पेक्ट आपके अंदर होनी चाहिए. बट देन कहाँ बैठो तो आप मेंटर से जरूर कर सकते. So let's move on to our next segment, which is never have I ever. Okay. So we have this tip for you. There are two options: have and never. If you have done it, have. No, then never. ऐसा मजा आना चाहिए. कितना ज्ञान हुआ है. So the first is never have I ever bunked a class. ये तो मैंने बता ही दिया. I have without knowing. But then उसके बाद तो bunk and I became friends. Second is never have I ever been nervous before giving a speech. Oh, right now. But seriously, thank you all. अभी मैं बहुत नर्वस कर रहा हूँ. अभी मेरे हाथ स्वेट कर रहे हैं. But you have been a really good audience. Okay. Never have I ever pulled an all-nighter to meet a deadline. I have. Even 3 nights back to back, 72 hours without sleep. Not recommended, but this is how I learned. मैं नहीं करना शुरू किया. Then I was sitting अभी मेरे दोस्त के साथ बाइक पे and I fainted. तो मैं बाइक से गिरते बचा. Not recommended. No career. Nothing in life is as important as your health. वो आपको थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा. 30 क्रॉस हो जाती है ना तो 29 364 तक आप ठीक रहते हैं. आप 30 टच करते हैं ना तो बैक में दर्द चालू हो जाता है. Have you crossed 30? Mentally no, but physically yes. Okay, so never have I ever accidentally sent an email to a wrong person. I have. I have. Lot of times. Messages भी होते हैं ऐसे. और अब तो thankfully to WhatsApp
कि उन्होंने डिलीट का ऑप्शन दे दिया है, वरना बात कहीं और हो रही थी। चलो छोड़ो। तो never have I ever forgotten an important piece of advice from a mentor. No, I never ever take my mentor. I never. नहीं, मेरी life is driven by my mentor, and it can be different mentor and different aspect of life. But नहीं, उनकी कहते की बात लिखी रखी, अब उसके बहुत सारे भी हो सकते हैं, मिटा सकते हैं, but मेरे लिए नहीं, मेरी लाइफ मेंटर से ड्राइव होती है, and I give that person that power कि आप मेरी लाइफ को ड्राइव कर सकते हैं, तो नहीं कभी। Next is never have I ever failed at something but learned an important lesson. Never ever failed at anything. Fail at something मतलब बिना कुछ मतलब उसमें फेल नहीं हुआ बट फिर भी एक लेसन सीखी है. हाँ, every time. फेलियर तो ऑफ कोर्स फेलियर से सीखना ये क्यों है, तो फेलियर से सीखना तो सब सीखते हैं, लेकिन सक्सेस को भी दिमाग में ना चढ़े तो उससे भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस आपके एक्शन की वजह से नहीं आती है, ये आपको विद टाइम समझ आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द पीपल यू आर एसोसिएटेड विद। तो आई थिंक सक्सेस से सीखना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेलियर से। Never have I ever worked on a project that didn't go well. वो many times. तो जो असाइनमेंट फिनिश ना करने वाली बीमारी थी वो मेरी जॉब में भी कंटिन्यू होती है कि मैं बहुत परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ और टाइम पे डिलीवर नहीं होता, तो बहुत हो गया। आई डोंट रिकमेंड दैट। मुझे ये टाइम सीखने को मिला है कि जस्ट डू इट। अभी तो क्या है ना, अभी कुछ सीखेंगे, पाइथन सीखनी है तो हम कहेंगे कि 10 रिसोर्सेज ढूंढो, फिर वो इतना इंफॉर्मेशन फटीग हो जाता है कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। बेटर है जो पहली वेबसाइट मिले हेलो वर्ल्ड से चालू करो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, तो परफेक्शन का वेट मत करो। Next, never have I ever accidentally shared a meme on a professional chat. I have. I have. Okay, so never have I ever missed a meme because of work or studies. Me? Meme. A lot many times. The good thing is now we have changed the name to intermittent fasting. तो अब हम ये मिस्टेक करते तो मैं intermittent fasting भी होगा। And the last is never have I ever nodded in agreement during a meeting without understanding anything. अभी भी तो सब कर ही रहे हैं ना। सबने किया है, मैंने भी किया है। I have. So next segment is rapid fire. तो मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको उस वर्ड से रिलेटेड जो भी पहला थॉट या कोई सेंटेंस आ रहा है आपको वो बताना है। ठीक है। तो मेंटर मैं दादाजी। किस तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस करते थे, आपको बताना चाहते एवरीथिंग मतलब मैंने अपनी लाइफ के सारे डिसीजन उनसे डिस्कस करके लिए, एंड देन पता नहीं मैं मे इट बी टेक्निकल नॉन टेक्निकल करियर, तो आई विल गिव क्रेडिट माय गेम क्रिकेट। आई विल से लाइफ आल्सो एज अ गेम। सच में मतलब ये समझ रहे हैं कि अगर आप लाइफ को गेम की तरह नहीं लोगे तो इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। और अभी जैसे कोई गेम खेलते हो, आप कई बार कोई लेवल क्रॉस नहीं कर पाते, बट गेम है इसलिए अगर आप लगे रहते हो और फिर इवेंचुअली कर भी लेते हो। तो लाइफ में भी सेम ऐसा है कि आपको कई बार लगेगा कि लाइफ इज नॉट गोइंग अहेड, बट इट इज। तो लाइफ इज पेट राइट नेम गोलू। आपका फेवरेट पेट कौन सा है? Animals like Animals? not good. शुभा I think dog. एडवेंचर Adventure, hiking. ट्राई करना चाहिए। Hiking. इमोजी मोस्ट यूज्ड I think वो एक बंदर बना है जो दोनों आंखें सूचना पड़ता है। मिस्टेक Bound to happen and don't get stuck with it. Guilt में नहीं जाना है, mistake होगी। कॉन्फिडेंस Confidence is in everybody, just you need a correct guide
टू क्या कहते हैं उसे निकालने के लिए, बट कॉन्फिडेंस सामने है और सामने नहीं है। इट्स जस्ट भगवान है और नहीं है, वाला सीन है। कॉन्फिडेंस आप सामने है और नहीं है। Good morning, sir. मोहित Good morning, Mohit. थैंक यू। As we know कि इंडिया में जो काफ़ी बड़ी कंपनीज है उन्हें चीप लेबर मिलता है rather than the main countries. So what extra skill you have that they called you first to Japan then to US? अब मेरे को वापस एक्चुअली पीछे जाना पड़ेगा। Yeah. मेरे हिसाब से ये सेम चीज जो आई हैव बीन रिपीटिंग कि आप जो भी चीज कर रहे हैं ना, अच्छा मेरे को बहुत एग्जांपल बहुत रिसेंट, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि कोई बड़े कहीं के पीएम में ऐसे कुछ बड़ी पर्सनालिटी वो बैठे थे किसी के साथ लंच कर रहे थे, तो अपने रेसिडेंसी में कर रहे थे लंच, तो उनका ग्रैंडसन आया, तो ग्रैंडसन आया तो आप पीएम के ग्रैंडसन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो सबने पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएम का ग्रैंडसन कुछ ऐसे ही बोलेगा, तो उसने बोला कि मैं आई वांट टू बी अ गार्डनर। तो उसके जो ग्रैंडफादर उसने कहा सन बी द बेस्ट गार्डनर दैट कैन बी। तो दैट्स द कैच कि आप जो भी कर रहे हैं ना, बी द बेस्ट इन इट। बेस्ट इज नॉट अ कंपैरेटिव वर्ड, बेस्ट इज दैट यू बिकम बेटर देन यस्टरडे, यू आर पर्सिंग टू बी द बेस्ट। तो मेरे को लगता है ये चीज़ है ना, मैंने फॉलो करी। मेरा कंप्यूटर साइंस फील्ड में था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में डाला गया, बहुत रोया, नो गिल्ट, इसमें जो बेस्ट हो सकता है आई ट्राइड टू गिव माय बेस्ट, लर्न व्हाटएवर आई कुड। तो व्हाटएवर फील्ड यू आर इन, जस्ट गो डीपर 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 एंड देन you'll be cherished like in the industry. और ये बात गलत है कि हम चीप लेबर है। There are many friends of mine from the same college. I would wish कि वो यहाँ पे हो। They are getting more paid than I am getting paid in US. तो cheap और expensive पे आपका कंट्रोल है कि आप cheap लेबर बनना चाहते हैं कि expensive। और लेबर हम फील करिए ऐसे तो नहीं करने। Good afternoon, boss. बोलिए Yes. भैया सीएजी की लैब में काम आ रही है क्या आपके? कौन सी? सभी सीएजी जो ड्राइंग को लैब में कराते हैं। हाँ, ये अच्छा हमारा डिस्कशन से पहले यही हो रहा था कि मैं 5 शीट बनानी होती है और पता नहीं कितनी बनानी होती है। कितनी? 5? मैंने 2 सबमिट की थी। जस्ट बिकॉज कि मेरे को आदत थी यार बहुत परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। देखो मेरे को जो चीज़ समझ आई है ना कि इंजीनियरिंग की खास बात यही है कि कई चीज़ें आपको लगेगी कि हमारे लिए काम की नहीं है, बट इट इज़ देयर फॉर सम रीजन। हो सकता है आपके काम की ना हो, बट दैट स्किल कैन बी यूज समवेयर एल्स। मुझे उस ड्राइंग ने कैसे हेल्प किया कि वी वर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट फॉर अ कंपनी, उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के लिए मैंने का इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया जस्ट बिकॉज आई हैड कंप्लीटेड दैट 2 शीट। तो हर चीज कहीं ना कहीं आपको काम आएगी, मे बी नॉट इन द फॉर्म दैट यू विश इन डायरेक्ट फॉर्म में, बट नथिंग, नो एफर्ट गोज वेस्टेड। Okay, boss. लाइट जाना मैनिफेस्ट करिए। अभी मैं आ रहा था ना, जब मैं कहा लाइट चली गई, अभी से मजा ही आ जाए। आप गलत टाइम पे मैं जब मैं कहा लाइट चली गई, अभी से मजा ही आ जाए। It's okay, this is fun. लाइट जाना मैनिफेस्ट करिए। अभी मैं आ रहा था। Oh my God, अब जवाब दे सकते हो। क्या बोलते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो
तो मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता था, इसलिए थैंक यू